Good morning, my dear students. Welcome back to your GK class. Without wasting time, now we will start our today's class. So today we are going to read a very interesting chapter, that is the tricolor. Can you guess what I am talking about? Yes, exactly. I am talking about the tricolor, means our national flag, Tiranga. National flags are the symbols of national pride, honor, and unity. All flags have a particular meaning, and it is a citizen's duty to respect her or his national flag. As we know, नेशनल फ्लैग किसी भी देश का उसके सम्मान और एकता का प्रतीक होता है और सभी एवरी कंट्रीज नेशनल फ्लैग हैव डिफरेंट मीनिंग. सभी देश के का जो फ्लैग होता है उनका अलग अलग मीनिंग होता है. वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ आवर ड्यूटी. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. हमें अपने राष्ट्रीय झंडे या नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए. सो it would be very interesting to know more and more about our Tiranga, our tricolor. So now we will start it. So firstly, you can see here, this is the Tiranga. It is our national flag. Okay, now I am going to start our chapter. Number first is the Prime Minister of India unfurls the national flag on Taz at the Red Fort in Delhi. So, can you tell me on which day the Prime Minister of India unfurls the national flag at the Red Fort in Delhi? किस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं? So this is Independence Day. The Prime Minister of India unfurls the national flag on Independence Day at the Red Fort in Delhi. And tell me, when we celebrate the Independence Day? Yes, this is 15th August. We celebrated the Independence Day 15 August. Okay? Now come to the second point. The dash, Ashok Chakra or Sudarshan Chakra in the middle of the white band is the wheel of law. The dash in the middle of the white band is the wheel of law. मीन्स अशोक चक्र या सुदर्शन चक्र जो हमारे फ्लैग के मिडिल मीन्स वाइट बैंड में जो व्हील होता है वो कौन सा होता है, अशोक चक्र या सुदर्शन चक्र. सो दिस इज अशोक चक्र. द अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड इज द व्हील ऑफ लॉ. द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट इज द व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्म, ट्रुथ और सत्य. इट डिनोट्स द ट्रूथ और सत्य. अगेन द व्हील डिनोट्स मोशन. द व्हील रिप्रेजेंट्स द डायनामिज्म ऑफ पीसफुल चेंज. जो हमारे तिरंगे के वाइट बैंड पे जो व्हील चक्र होता है उसका क्या नाम है, वो अशोक चक्र है. और ये हमारे लाइफ में गति को रिप्रेजेंट करता है कि मीन्स लाइफ हमेशा चलती रहती है, मूवमेंट.
इसके साथ ही ये पीसफुल चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम ग्रोथ तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट शांतिपूर्वक। एंड द 24 spokes of the Ashok Chakra inspires every Indian to work tirelessly for 24 hours. Do you know how many spokes on the Ashok Chakra? So the 24 spokes मीन्स जो ये चक्र होता है उसमें टोटल कितनी तीलियाँ होती हैं? तो पूरी 24, उनको हम स्पोक्स बोलते हैं। 24 तीलियाँ होती हैं जो कि हमें इंस्पायर करती हैं 24 आवर टायरलेसली वर्क करने के लिए। इसके साथ ही ये किसी भी पर्सन के 24 क्वालिटीज़ को भी शो करती हैं कि मीन्स हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें अपने देश के विकास के लिए निरंतर गतिशील होना चाहिए। ओके, इट इज डैश नेवी ब्लू और स्काई ब्लू इन कलर, सो इट इज नेवी ब्लू इन color. It signifies that there is a life in movement. As I told you कि ये हमारे लाइफ में मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो जीवन है वो निरंतर गतिशील है। मीन्स हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेके रुकना नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू अपने वर्क को करते रहना चाहिए। In this time also you can see the example during the lockdown. इस लॉकडाउन में भी आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि स्कूल के क्लोज़ हो जाने की वजह से आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। ये ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक यू हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग, नॉट, यू आर डूइंग ऑल थिंग। यस, you are playing, you are eating, you are studying. So this is so the wheel, Ashok Chakra, life in movement. Okay. Number 3, the ratio of width to the length of the flag is 3:2. I am showing you the flag. Yeah, this is the flag, this is our national flag, and if you will see here, this is the ratio. It's mean its length and its width. मीन्स इसकी चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। मीन्स अगर इसकी चौड़ाई 3 मीटर होगी तो इसकी लंबाई 2 मीटर होगी। और अगर सपोज दैट बड़ा फ्लैग कोई बना रहा है, फिर भी वो जब भी फ्लैग बनेगा तो उसकी अगर ये चौड़ाई 3 किलोमीटर है तो लंबाई कितनी होगी? 2 किलोमीटर। सो दिस इज द रेशियो। सो द रेशियो ऑफ द width to the length of the flag is 3:2. Okay. Number 4, the design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. The design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. हमारा जो तिरंगा है ये कैसा होगा? मीन्स कि इसके पहले ये तिरंगा ही नहीं था, इसके पहले बहुत टाइप के फ्लैग बनाए गए। और एक फ्लैग जिसमें कि गांधी जी के चरखे को रिप्रेजेंट किया गया था, तो उसके साथ ही कई बार चेंजेस हुए। उसके बाद लास्ट में जाके जो हमारा तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, वो उस चीज़ को संविधान सभा द्वारा
22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होगा, ऐसा होगा, लाइक दिस। सो इस चीज़ को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया, एडमिटेड किया गया। ओके, कम टू द पॉइंट 5th, Indian citizens say dash while saluting the national flag. So you can tell it. We say Jai Hind. Indian citizens say Jai Hind while saluting the national flag. हम जब भी अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जय हिंद या इनकलाब जिंदाबाद, तो हम जय हिंद बोलते हैं। यस। Number 6. Our national flag has 3 colors. Write what these colors signify in the blanks. So first is saffron, white and green. So in the national flag of India, the top band is of saffron color, indicating the strength and the courage of the country, and the white middle band indicate peace and truth with dhamchakra, and the last band is green in color, show the fertility, growth and auspiciousness of the land. So here we will feel saffron represent courage, white represent peace and green represent prosperity. जो हमारा तिरंगा है उसके जो ट्राई कलर्स हैं, फर्स्ट टॉप बैंड पे सैफरन मीन्स केसरिया रंग होता है, जो हमारे ताकत और साहस को, स्ट्रेंथ एंड करेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वाइट मिडिल बैंड, जो वाइट बैंड होती है वो पीस, शांति को शो करता है, किसके साथ, ट्रू विथ धम्मचक्र। इसी वाइट बैंड पे व्हील भी होता है, अशोक चक्र। सो अशोक चक्र धर्म, सत्य और लाइफ में मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट बैंड इज ग्रीन कलर, जो नीचे हर ग्रीन कलर बैंड होता है वो हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि, हमारे विकास को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डू यू नो, ऑन 26 January 2002 the flag code was changed. Now the citizens of India are free to host the Indian flag over their home, offices and factories on any day. On 26 January 2002, 26 January 2002 को the flag code was changed. मीन्स नेशनल फ्लैग के कोड को चेंज किया गया, मीन्स उसके रूल्स को चेंज किया गया। इसके बाद ये सभी एवरी सिटीजन्स, एवरी इंडियन सिटीजन, उनको ये राइट है, अधिकार है कि वो अब नेशनल फ्लैग को कभी भी और कहीं पर भी, मीन्स अपने ऑफिस, फैक्ट्री या घर पे भी उसको होस्ट कर सकते हैं। ध्वजारोहण अपने घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी वो फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। बट बिफोर इट, इसके पहले ओनली ऑन नेशनल ओकेज़न वी कैन होस्ट आवर नेशनल फ्लैग ओनली ऑन नेशनल ओकेज़न। इसके पहले हम केवल राष्ट्रीय त्यौहार। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ नेशनल ओकेज़न? National occasions like Independence Day, Republic Day, these are national
occasion. Okay? So, but now we are free to host our national flag at our home, office, and factories on any day. Okay? So, I hope you all have understood about the tricolor. And now, this is a homework. You have to read this chapter and make your notes. You have to make your notes neat and clean. Okay? Thank you and God bless you.